محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالی صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ سابق ایم پی ڈی سی نواز کے گھر پر سیاسی جنگ پوری شدت پر، کل کانگریس میں شمولیت، آج دیا استعفیٰ، اہلیہ نے دیا سیاسی پیغام، میرے والد کی جان خطرے میں، ڈی سنجے کا اظہار۔ خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں دوسری مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے والی عالمی باکسر نکھت زرین کو ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے دی مبارکباد۔ کارپوریٹ ٹیکس کے طور پر علاج معالجہ غریب عوام کو فراہم کرنا CM KCR کا اولین مقصد۔ ورنگل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل سے وابستہ کاموں کا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے لیا جائزہ۔ دہلی لیکر اسکیم مقدمے کا ED کی جانب سے جاری کیے گئے سمن کو چیلنج کرتے ہوئے BRS MLC کے کویتا کی جانب سے داخل کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے کیا تحقیقات کا آغاز۔ حیدرآباد کے LB نگر میں نئے AC سلیپر بسوں کا RTC چیئرمین و رورل MLA باجوٹی گوردھن کے ہمراہ ریاستی وزیر P اجے کمار نے کیا افتتاح۔ طلباء کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے مقصد کے تحت روٹری بھارتی اسکول یوتھ لیڈرشپ ایوارڈ سے ضلع سیشن جج سنیتا کنچالا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ راہل گاندھی جی کی رکنیت سازی منسوخ کرنا BJP کی بزدلی کی علامت، BJP حکومت کے خلاف کانگریس کی جنگ ہر وقت جاری رہے گی۔ سینئر کانگریس قائد سید خیسر شہر نظام آباد تلنگانہ اسٹیٹ سے آپ کے درمیان میں ہوں۔ میرے ملک بھارت ہندوستان کے اندر حد سے بڑھ کے کام ہو رہے ہیں، بس سے بدتر کام ہو رہے ہیں۔ اسی ہنسنا میں راہل گاندھی جی کی صدرتا کو ختم کر دیا گیا اور ڈیموکریسی کا خون کر دیا گیا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، یہی نریندر بھائی مودی صاحب اور ان کی کیبنٹ کے منسٹرز، ان کے MLA، کی پارٹی کے MLAs، انہوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ نریندر بھائی مودی صاحب کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی 125 سال بڈھی پارٹی ہے، یہ بڈھی کیا کام کر سکتی، یہ بوڑھے کیا کام کر سکتے۔ اور سونیا گاندھی کو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جرسی کی گائے کہا۔ یہ کتنے خطرناک لفظ انہوں نے استعمال کیا مودی جی نے۔ آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک ہندوستان کے اندر۔ نیرو مودی نے کیا کیا، للت مودی نے کیا کیا، اس دیش کا پیسہ سمپتی لے کے بھاگ گئے، اور یہی وہ تو سو اس دیش میں لٹیرے لوٹ رہے ہیں۔ وہ 20,000 کروڑ۔ مانالا موہن ریڈی اور کیشو وینو کی قیادت میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی نااہلی کے خلاف احتجاج۔ آج کانگریس بھون میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی نااہلی کے خلاف احتجاج کے لیے ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر مانالا موہن ریڈی اور سٹی کانگریس کمیٹی کے صدر کیشو وینو کی قیادت میں ایک ستیہ گرہ کا انعقاد کیا گیا۔ PCC کے ایگزیکٹو صدر مہیش کمار گوٹ اور پارلیمنٹ ممبرشپ انچارج انل کمار نے مہمان خصوصی کے طور پر پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہیش کمار گوٹ نے کہا کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ غریب و عوام کی دولت کو اس تک پہنچانے میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادھانی کی ترقی میں نریندر مودی کا کردار ہے، جو کہ ایک چھوٹے صنعت کار تھے، ایک عالمی لیڈر، اور راہل گاندھی کا اپوزیشن لیڈر کے طور پر نریندر مودی سے اس معاملے پر سوال کرنا سازشی ہے، اس خوف سے کہ
वो अवाम के सामने मुजरिम ठहरेंगे। राहुल गांधी को नाअहल करार देना बीजेपी का इरादा है। सूरत की अदालत ऐसा फैसला दिया जो राहुल गांधी के अल्फाज से 10% ज्यादा था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत के लिए 1 माह की मोहलत के साथ जमानत दे दी, लेकिन राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत एक ही दिन में मनसूख कर दी गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूख करने से नहीं डरेंगे कि राहुल गांधी बीजेपी की बदउनवानी से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक नाअहली वापस नहीं ली जाती सच्चाई के रास्ते पर जमहूरी तरीके से लड़ते रहेंगे। इस मौके पर अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश का मुकदमा बनाकर इन्हें पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया और चूंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इनसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के ताल्लुकात के बारे में सवाल किया, इसीलिए इन्हें बोलने के लिए नाअहल करार दिया गया। पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि गांधी लड़ रहे हैं और इंदिरा गांधी को भी माजी में नाअहल करार दिया गया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बन गई। इसी तरह अगले इलेक्शन में राहुल गांधी भी वजीर आजम बनेंगे। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की नाअहली नरेंद्र मोदी बुज़दिली का मुंह बोलता सबूत है। రాహుల్ గాంధీ గారిని అప్రజాస్వామికంగా పార్లమెంట్ నుండి డిస్క్వాలిఫై చేయడాన్ని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా గాంధీ మార్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్యాగ్రహ దీక్షలు చేస్తా ఉంది. మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత దేశ ప్రజల సంపద, ముఖ్యంగా బీద ప్రజల సంపదని అదానికి చేరవేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम में कोई सामान अपने हमरा ना रखे। हरम की सिक्योरिटी बाबुल दाखिला पर ज़ायरीन को अपने साथ बैग्स वगैरह लेकर हरम में मना लिया करते थे, लेकिन अब सऊदी शहरी दफा ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा जाते वक्त किसी किस्म का सामान अपने हमरा ना रखे। सामान की वजह से इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरों को भी परेशानी होती है। सबक न्यूज के मुताबिक शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की कि वो उम्रे की अदायगी या मस्जिद हरम में नमाज बा जमात अदा करने के लिए ना रखे ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। वाज़ेह रहे, माह रमजान में दुनिया भर से उम्रे की अदायगी के लिए लाखों अफराद अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जबकि ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग रमजान का उम्रा करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से अज़दाम हो जाता है। अज़दाम की वजह से लोगों को ये हिदायत की जाती है कि वो अपने हमरा किसी किस्म की सामान ना लाए। अलावाजी सामान उठाकर चलने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि हरम के बाहर हुकूमत की जानिब से लॉकर्स का इंतजाम है। लोग मामूली उजरत पर अपना सामान लॉकर में रखकर हरम में जा सकते हैं। डेनमार्क में फिर एक मरतबा कुरान मजिद के नुस्खे को नजरातिश करने का वाक़या, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक ने जुमा को डेनमार्क में इस्लामोफोबिक इंतहा पसंदों की तरफ से कुरान मजिद के नुस्खे और तुर्की के परचम को नजरातिश करने की मजम्मत की। इस वाक़े के खिलाफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, अर्दन, कुवैत और क़तर ने इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा कि इन इक़दामात से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। खास तौर पर रमजान के दौरान इंतहाई दाएं बाजू के मुस्लिम मुखालिफ ग्रुप पेट्रियटन गार्ड ने कोपेनहेगन में तुर्की के सिफारत खाने के सामने इस्लामोफोबिक पैगामात वाले बैनर्स उठाए हुए हामियों की फेसबुक पर लाइव फुटेज नशर की, जब इन्होंने कुरान का नुस्खा और तुर्की का परचम नजरातिश किया था। निक्का ज़रीन तेलंगाना के लिए फ़ख्र। वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार शानदार जीत हासिल करने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दी मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निक्का ज़रीन को मुबारकबाद दी। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा पैगाम में केसीआर ने निक्का ज़रीन की जानिब से गोल्ड मेडल जीतने पर एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर तेलंगाना को फ़ख्र है। मुसलसल मेडल्स हासिल करते हुए निक्का ज़रीन ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। केसीआर ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए इनकी फलाह बहबूद के अहद की पाबंद अहद है। भीमगल म्यूनसिपलिटी के मुचकुर सड़क पर सेंट्रल लाइटिंग से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। भीमगल म्यूनसिपलिटी के मुकाम पर वाक़ बिजोरा वो मुचकुर रोड पर जदीद तौर पर शुरू करने वाले सड़क की तोसी, डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग के इफ्तिताह पर मबनी तरक्याती कामों में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करने के मौके पर मुकामी अवाम व बीआरएस
قائدین و عوامی نمائندوں کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کاوشوں کے سبب بھیمگل کو میونسپلٹی میں تبدیل کیا گیا ہے اور ریاستی وزیر بلدی نظم نفس KTR کے خصوصی دلچسپی کے تحت 25 کروڑ روپے ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کی کاوشوں کے سبب مزید فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے بھیمگل میں تمام طرح کے کئی ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاستی عوام کی ہمت جہت ترقی کے لیے کاربند ہے، ریاست کے ہر علاقے میں ہر ممکنہ اقدامات کرتے ہوئے ترقی کے لیے کوشاں ہے اور عوام کی سہولتوں کی فراہمی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور وہ روز نئے اسکیمات کو روب عمل میں لاتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر مستفید کروائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ جو جہد سے جیتی گئی ہے، چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے ملک کے لیے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ریاست تلنگانہ میں ذات، مذہب، جنس، علاقے سے قطعی نظر تمام برادریوں کے عوام کو فلاحی اسکیمات نافذ کی جا رہی ہیں۔ ایسی اسکیمات ملک کے کسی دوسری ریاست میں نہیں ہیں اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ کی برق رفتار ترقی اور ترقی کو اعلیٰ مناظر پر پہنچانے کے لیے سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں ایک کے بعد ایک دیگر مرحلے وار ترقیاتی کاموں کو روب عمل میں لاتے ہوئے حکومت تلنگانہ ریاست کو ترقی کے اعلیٰ منازل پر پہنچانے کے لیے ہر آئے دن تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے میں مصروف عمل ہے، کیونکہ ریاستی حکومت انتخابات کے موقع پر تلنگانہ عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو مرحلے وار طریقے سے مکمل کر رہی ہیں اور KCR کی قیادت میں حکومت سماج کے تمام طبقات کی خوشحالی و فلاح بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندوں، مقامی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ నీకు ఇంకొక విషయం చెప్తా, గంగాధర్ గారు ఉన్నారు, నాకు తెలియదు ఎస్సీలలో ఇక్కడ మాలా అక్కడ మాదిగా ఇట్లా ఉంది అని చెప్పి నాకు నిజంగా కూడా తెలియదు వాస్తవంగా. అయితే గంగాధర్ అన్నని నేను ఆడపోయి వార్డులో పెట్టినా, గంగాధర్ అన్నని ఆ వార్డులో పెడితే అక్కడ తర్వాత నాకు తెలిసింది మొత్తం నామినేషన్లు అయిపోయినాక మధుశేఖర్ సారే చెప్పిద్దాం, అరే ఆడబెట్టినవా। वेलपुर के पच्चला नड़कुड़ा देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों के अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहकिल में फराहमी अमल में लाई गई। वेलपुर के पच्चला नड़कुड़ा देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्र शेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों के अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तिफादा कुनैनगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुस्तहक़ीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़ लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने गरीब व मुतवस्सित तबक़े की लड़कियों की शादी ब्याह की तक़रीब के लिए वालिदैन को किसी भी किस्म की परेशानी न होने के लिए इस स्कीम को मुतारफ़ किया है। इस स्कीम के तहत हर इस्तिफादा कुनैनगान को 1,116 माली इमदाद फराहम करने की वजह से गरीब व मुस्तहक़ तबक़े के अफराद को बड़ा सहारा साबित हो रहा है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने फलाही स्कीमात के जरिए रियासत में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि रियासत में अमल हो रही फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क के कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स इन फलाही स्कीमात से मुतासर होकर अपनी अपनी रियासतों में इन स्कीमात को मुतारफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम की तरक्की फलाह बहबूदी को ही तरजीह दी गई है, जिससे रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनैनगान ने रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर, पच्चला नड़कुड़ा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली आलमी बॉक्सर निक्कत ज़रीन को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की गोल्डन गर्ल निक्कत ज़रीन को मुबारकबाद दी और कहा कि निज़ामाबाद के आलमी बॉक्सर निक्कत ज़रीन मुसलसल कामयाबी हासिल करना पूरे मुल्क के
लिए बाइसे फख्र होने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहते हुए खुशी का इजहार किया। वो मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना के विखार को कौमी सतह पर वसअत देने की ख्वाहिश की। हनुमकुंडा पीजीआर कन्वेंशन में मुनक़िदा आलमूर एसीपी रायला प्रभाकर की दुख्तर की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इनके अहलिया ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। हनुमकुंडा पीजीआर कन्वेंशन में मुनक़िदा आलमूर एसीपी रायला प्रभाकर की दुख्तर की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनके अहलिया के हमरा शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की व नेक तौक़ात का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडली चेयरमैन बंडा प्रकाश मोदीराज, MLA एन नरेंद्र, निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू व दीगर ने शिरकत की। अप्रैल के महीने में बैंकों को 9 से 15 दिन की तातीलात। नए माली साल 2023-24 के आगाज 1 अप्रैल के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी है। अप्रैल का महीना पहले 2 दिनों की तातीलात से शुरू होता है। मुल्क भर में 5 इतवार, दूसरा चौथा हफ्ता और दीगर छुट्टियों को मिलाकर अप्रैल के महीने में 15 दिन बैंक को तातीलात है। बाद रियासतों में 9 दिन तक बैंक काम नहीं करेंगे। सालाना बैंक खातों के आगाज के मौके पर 1 अप्रैल हफ्ता और 2 को इतवार की तातील है। इसलिए मुल्क भर में इन 2 दिनों में बैंक काम नहीं करेंगे और अम्बेडकर जयंती, बाबू जगजीवन राम जयंती, महावीर जयंती और रमज़ान के मौके पर बैंक को मुल्क भर में तातीलात होंगी। SSC इम्तिहानात का 3 ता 13 अप्रैल रियासत भर में इनेकाद। 4,94,000 तलबा की शिरकत। 2,652 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम। रियासत भर में SSC के इम्तिहानात का 3 अप्रैल से आगाज होगा और 13 अप्रैल तक इम्तिहानात जारी रहेंगे। इम्तिहानात का वक्त सुबह 9:30 ता 12:30 रहेगा, जबकि कंपोस्ट कोर्स और साइंस की पर्चजात के औकात सुबह 9:30 ता दोपहर 12:50 रहेंगे। रियासत भर में जुमला 4,94,620 तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे, जिनमें 4,25,826 रेगुलर उम्मीदवार शिरकत करेंगे और रियासत भर में 2,652 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं। SSC इम्तिहानात 11 पर्चजात के बजाय 6 पर्चजात पर मुश्तमिल होंगे। हॉल टिकट्स की 24 मार्च से रियासत के तमाम स्कूलों को रवानगी का आगाज हो चुका है और हॉल टिकट्स वेबसाइट पर दस्तयाब है। हुकूमत ने इम्तिहानात के बेहतर और पुरअमन इनेकाद के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स ने इम्तिहानी मराकिज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों का जायजा मुकम्मल कर लिया है। इम्तिहानी मराकिज़ के लिए स्टाफ के तकर्रुर, फ्लाइंग स्क्वाड, मटेरियल की सरबराही, CCTV कैमरों की तनसीब और तमाम इम्तिहानी अमले को शनाख्ती कार्ड्स की जराई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमे सेहत की जानिब से हर इम्तिहानी मरकज़ पर एक ANM को मुतयन किया जाएगा, जिनके साथ ORS पैकेट्स और फर्स्ट एड किट रहेगी। RTC की जानिब से उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इजाफी बस सर्विस चलाई जाएगी। महकमे बरक़ी इम्तिहानात की तैयारी और इम्तिहानात के दौरान बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाएगा। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें इम्तिहानी मराकिज़ पर इंतजामात के लिए पुलिस से तालमेल की हिदायत दी। इन्होंने पर्चजात और दीगर मटेरियल की सरबराही के लिए गाड़ियों का इंतजाम करने की हिदायत दी। 3 अप्रैल को फर्स्ट लैंग्वेज का इम्तिहान रहेगा, जबकि 4 अप्रैल सेकेंड लैंग्वेज, 6 अप्रैल थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, 8 अप्रैल मैथमेटिक्स, 10 अप्रैल साइंस, फिजिक्स साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, 11 अप्रैल सोशल स्टडीज, 12 अप्रैल OSSC मेन लैंग्वेज पेपर 1 संस्कृत व अरबी, SSC वोकेशनल कोर्सेज थ्योरी और 13 अप्रैल को OSSC मेन लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत व अरबी का इम्तिहान होगा। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 110 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इन्होंने कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा और दीगर जिम्मेदार ओहदेदारान को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की।
जिले कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदान की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों का कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने जायजा लेते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़ौक्तन जांच करके मसाइल को हल करने की अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन, DRDO सायना अहदेदारान मौजूद थे। बांसवाड़ा मंडल बोरलम देहात में पार्टी सदर अवामी नुमाइंदों की जानिब से देहात के BRS पार्टी माइनॉरिटी सदर के तौर पर सैयद अमीन हुसैन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। बांसवाड़ा मंडल के बोरलम देहात में हाल ही में BRS पार्टी माइनॉरिटी सदर सैयद अहमद हुसैन का साना इर्तहाल होने की वजह से मौजूदा के अखिलती पार्टी सदर ओहदा खाली हो जाने के बायस बोरलम देहात के पार्टी सदर जी साइलू, MPTC P श्रावंती देवेंद्र रेड्डी, नायब सरपंच मंदा श्रीनिवास, पार्टी अवामी नुमाइंदे व खलती अफराद ने मरहूम सैयद अहमद हुसैन के दूसरे फर्जन सैयद अमीन हसन को देहात के अखलती सदर के तौर पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। दहली के लिकर स्कैम मुकदमे में AD की जानिब से जारी किए गए समन को चैलेंज करते हुए BRS MLC कविता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का आगाज अमल में लाया। गुज़िश्ता नलिनी चिदम्बरम की जानिब से खवातीन को ED ऑफिस में तहकीकात करने के मामले में दाखिल किए गए मुकदमे को अदालत ने 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। MLC कविता APC ताल्लुक रखने वाले YSR MP मागंटा श्रीनिवास रेड्डी को बेनामी अरुण राम चंद्रा पलाई राहुल साउथ ग्रुप के तहत आप लीडरों को 100 करोड़ रुपए की पेश की इमदाद फराहम करने के मामले में ED ने इस माह की 11 तारीख को के कविता को पहली मरतबा तहकीकात अमल में लाते हुए फिर दोबारा 16 तारीख को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया। कायदीन के मुताबिक खवातीन को घर पर ही पूछताछ करने की बात की, लेकिन इसके खिलाफ ED ऑफिस में तहकीकात अमल में लाने के खिलाफ के कविता ने चैलेंज करते हुए इस माह की 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इस माह के 28-29 तारीख को तेलंगाना हिस्ट्री कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने का TV वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने किया इजहार। डिचपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में वाक़े लॉ कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना हिस्ट्री कांग्रेस 65वीं कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ा ब्रोचर का TV वाइस चांसलर डी रविंदर के हाथों तंजीम की नुमाइंदों ने रस्मी इजराई अमल में लाई। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के 7 मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले तारीख़ के प्रोफेसर, मुहक़क़ीन व तहक़ीक़ी तलबा ने शिरकत की। वरंगल में ज़ेरे तामीर 24 मंजिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। वरंगल में जदीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लेने के दौरान इनके साथ मुकामी रुकन असम्बली ए नरेंद्र, हनुमकुंडा जिला कलेक्टर सिकता पटनायक, RNB ENC गणपति, तामीर इम्काना के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करना ही CM KCR का अवलीन मकसद होने का इजहार किया। मुल्क में कहीं भी न होने वाली सहूलत को वरंगल में 24 मंजिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। వరంగల్ నగరంలో వరంగల్ ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో ఈ మెగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నెలకొల్పాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. 42 ఎకరాల స్థలంలో 19 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ల ఏరియాతో 2000 పడకలు 19 లక్షల స్క్వేర్ ఫీటు 2000 పడకల సౌకర్యంతో ఈ దాదాపు 1200 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో 24 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ కట్టాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. रुद्रपुर मंडल के अकबरनगर देहात में मुनाकिदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रुद्रपुर मंडल के अकबरनगर देहात में मुनाकिदा तरक्याती व संग बुनियाद तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS कायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व मुकामी अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रुद्रपुर देहात को खुसूसी तौर पर दरकार फंड से मुख्तस करते हुए तमाम तरह के तरक्याती काम तेज़ रफ्तार के साथ अंजाम दिए गए और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद अकबरनगर में मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च करने का इजहार किया। बातज़ा असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने 25 लाख रुपये की मालियती रकम से
नकला तालाब पर तामीर करदा पुल का इख्तिताम अमल में लाते हुए 10 लाख रुपए के मसाले से तामीर करने वाले मंदिर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इसी तरह से 40 लाख रुपए के मसाले से सीसी रोड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा गया और 20 लाख की लागत से तामीर करदा ज़ायद कमरे जमात के अलावा 10 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड से वाबस्ता कामों का इख्तिताम अमल में लाया गया। साबिक़ा एमपी डी श्रीनिवास के घर पर सियासी जंग पूरी शिद्दत पर, कल कांग्रेस में शमूलियत, आज दिया इस्तीफा। अहलिया ने दिया सियासी पैगाम, मेरे वालिद की जान खतरे में, डी संजय का इजहार। साबिक़ा वज़ीर व सीनियर कायद डी श्रीनिवास कल शहर हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले डी श्रीनिवास आज कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के ताल्लुक़ से जारी करदा मकतूब को डी श्रीनिवास के शरीक हयात ने मीडिया के सामने मकतूब को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन घर न आने की ताकीद की, क्योंकि डी श्रीनिवास की तबीयत नासाज है, इस मामले को सियासी रंग ना देने की ख्वाहिश। शहर के दास नगर में वाक़े नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में तलबा के लिए रॉयला 2023 रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। शहर के दास नगर में वाक़ नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में तलबा के लिए रॉयला 2023 रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स प्रोग्राम का क़याम अमल में लाने का सदर सतीश शाह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल आकुला ने इजहार किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाली ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि रोटरी की जानिब से इनेकाद अमल में लाने वाले रॉयला प्रोग्राम तलबा की ज़िंदगी में एक मकसद को हासिल करने में काफ़ी मददगार होने का इजहार किया। ఇక ఆ టైంలో చూస్తే కూడా ఏం కాదు మనకి, అప్పటికే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ఇంకా సగం బ్లాంక్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. తర్వాత ఒక 5-10 మినిట్స్కి 1-2-3 సార్లు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకుంటే అప్పుడు మనకి ఓకే ఇవన్నీ మనకి తెలిసిన ఆన్సర్స్ అని వస్తాయి। श्रीकोंडा मंडल में बीआरएस पार्टी मंडल सतह के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने की शिरकत। श्रीकोंडा मंडल में बीआरएस पार्टी मंडल सतह के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान से कुछ वक्त गुजारने के बाद कहा कि सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी को मुस्तहकम करने के मकसद के तहत कारकुनान कायदीन के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान की हर तरह से मदद फराहम करने का इजहार किया। అదే మనసు దగ్గర పని కాలేదు నాకు అని ఎవరు అనుకోవద్దని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. అందులో భాగంగా గ్రామానికి రోడ్డు అంటే రోడ్డు, కొంతమంది లోన్ అంటే లోను, 2BHK దళిత బంధు। हैदराबाद के एलबी नगर में नए एसी स्लीपर बसों का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन के हमरा रियासती वजीर पी अजय कुमार ने इफ्तिताम अमल में लाया। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन के हमरा रियासती वजीर पी अजय कुमार ने हैदराबाद के एलबी नगर में नए एसी स्लीपर बसों का झंडा लहराकर इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अवाम को नए स्लीपर बसों से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन, एमडी सजनार व दीगर ने शिरकत की। ఆదాయం పొందుకొని నూతన బస్సులను కొనుగోలు చేసుకొని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకోవడంలో చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు సాగుతూ ఉంది। అందులో భాగంగానే ఇంతకుముందు మరి సూపర్ లగ్జరీ అండ్ డిలక్స్ బస్సులను కూడా 50 మందిగా మంత్రి గారు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा एमपी डी श्रीनिवास के घर पर सियासी जंग पूरी शिद्दत पर, कल कांग्रेस में शमूलियत, आज दिया इस्तीफा। अहलिया ने दिया सियासी पैगाम, मेरे वालिद की जान खतरे में, डी संजय का इजहार। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी मरतबा गोल्ड मेडल जीतने वाली आलमी बॉक्सर निखत जरीन को रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा गरीब अवाम को फराहम करना सीएम केसीआर का अव्वलिन मकसद। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। दहली लिकर स्कैम मुकदमे का ईडी की जानिब से जारी किए गए समन को चैलेंज करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया तहकीकात का आगाज।
हैदराबाद के एलबी नगर में नए एसी स्लीपर बसों का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजडी गोवर्धन के हमरा रियासती वजीर पी अजय कुमार ने किया इफ्तिताह। तलबा को आला तालीम याफ्ता बनाने के मकसद के तहत रोटरी भारतीय स्कूल यूथ लीडरशिप अवार्ड से जिले सेशन जज सुनीता कुंचाला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।